Hi everyone. This video is about class 10th mathematics CBSE curriculum. Due to coronavirus, the country was in lockdown for a longer duration, especially the schools. So the children should not suffer, and for that purpose, CBSE has reduced the syllabus content almost for every subject. Here I am talking about class 10th mathematics. And I have few students of mine with me, and we will have a discussion about the course deduction, how they feel and what is their opinion. So let's continue. First of all, I am telling you the marking scheme of class 10th unit wise. So Emreen, I would request that if you could kindly note it down also. Number system, number system 6 marks. Number system is basically chapter 1, that is real numbers. Then algebra 20 marks. Later on I will also cover what is coming, what chapters are there in each unit one by one. Coordinate geometry 6 marks. Geometry 15 marks. Trigonometry 12 marks. Mensuration 10 marks. Statistics and probability 11 marks. So that comes total 80 marks. ठीक है जी, clear है बच्चों? ठीक है? Okay. So let's talk unit wise now. Number system. Number system यानी real numbers. That is chapter 1. The deleted portion is Euclid division lemma. तो first of all we should know कि Euclid division lemma इस chapter में कहाँ था. So as Nirja earlier said that Euclid division lemma is basically used to calculate the HCF of two or three numbers and then to check the form of a number, like even का form कैसा होता है, odd number का form कैसा होता है, square का form कैसा होता है किसी number के cube का form कैसा होता है. So basically exercise 1.1 I should say of NCERT book class 10th is deleted, right? कोई confusion इसमें नहीं. उसमें deleted topics में सिर्फ ये लिखा है, तो अब मैं फटाफट ब्रश अप कर दूंगी कि what all is coming. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. ठीक है, deleted देख के हम खुश तो बहुत हो रहे हैं, गब्बर खुश तो बहुत है, लेकिन गब्बर को पता नहीं पीछे जय और वीरू की आर्मी अभी बहुत बड़ी है जो आ रही है. So what all is coming, I'll just फटाफट मैं एक ब्रश अप दूंगी और सुनते रहिएगा उसको. ठीक है. So the coming is the first thing is fundamental theorem of arithmetic, that is prime factorization. Right, prime factorization, that is the second exercise. ठीक है, उससे हम HCF और LCM निकालते थे, जिसकी मैंने ट्रिक्स आपको सिखाई हैं. हाईएस्ट डिग्री, लोएस्ट फैक्टर, वो ईच फैक्टर, ये सब वाला वो सब आपको करना है. 1.2 is definitely there. Then proofs of irrationality of root 2, root 3, root 5. ठीक है, that is 1.3 exercise. तो कि prove that root 2 is irrational, root 3 is irrational. तो 1.3 is definitely there. And then last exercise 1.4 of NCERT, that is also there, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि whether the P by Q form का जो नंबर है rational number, whether it's terminating or non-terminating, repeating. तो उसका एक कंडीशन हुआ करता था वो, यानी कि more or less रियल नंबर्स में फर्स्ट एक्सरसाइज कटी है. सो आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज योर ओपिनियन. आपको कैसा लग रहा है ये कटने पर? एनी वन ऑफ यू? Okay, so you were feeling that it's not that difficult, it should have not been cut. Okay. I also think that the whole paper saying maths and representation, that was just like revision of all the chapters you have done in like earlier classes and all.
Ma'am, I think it is for the people who are not studying like for the 4 months because of the lockdown. But because we have studied from like almost starting, so it's not like a good trip for us. We should have given the example rules. Yes, Emreen, I agree with you. What you are saying is that yes, the course reduction is beneficial for those who do not have the facility of online classes. Luckily, you guys have this opportunity. Your schools are also giving, your parents have also taken coaching classes for you where live classes आप मुझसे ले ही रहे हो. आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये बात सही है कि उन बच्चों को जहां ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा कम है, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कुछ ऐसे, अब तो दो हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि उन तक भी ये सब पहुंचे, बट स्टिल अगर उनका जो नुकसान है वो बच गया है ना. और यूक्लिड डिवीजन गैमा मुझे लगता है कि हाँ ये इजी टॉपिक था, इतना टफ नहीं था, एंड कंसिडरिंग कि हम ये बहुत अच्छे से कर चुके हैं तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि क्यों कट गया. पर चलो उन बच्चों के लिए अच्छा है जिन्होंने अभी कुछ किया नहीं है. कमिंग अप टू यूनिट नंबर 2, दैट इज एलजेब्रा. एलजेब्रा के अंदर ना हमारे 4 चैप्टर्स हैं बच्चों. One is chapter number 2, that is polynomials. Chapter number 3, pair of linear equations in 2 variables. Chapter number 4, which is quadratic equation, and chapter number 5, which is arithmetic progression. Chapter wise चलें तो polynomials में क्या कटा है. पॉलिनोमियल्स में उन्होंने कहा है कि जो स्टेटमेंट्स आते थे ना कि डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करो, वो क्वेश्चंस कट गए हैं. रिमाइंडर थ्योरम के प्रूफ्स वगैरह वो 9th से भी कटा है. तो मेरे और द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि क्या कटा है. अगेन आई एम सेइंग, आई एम एम्फेसाइजिंग कि क्या आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना. ठीक है, सो क्या आ रहा है पहले मैं वो बता रही हूँ, सुन लेना ध्यान से. जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो अबाउट ग्राफ्स है. ग्राफ पैराबोलास वगैरह दिए होते हैं कि कितने प्लेसेस पे काट रहा है ना, वो कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस दिस है. तो 2.1 इज वेरी मच देयर एनसीईआरटी का. सेकेंड एक्सरसाइज है 2.2, जहां पर हम जीरो निकालना सीखते हैं और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना सीखते हैं, है ना. सो दैट इज 2.2. 2.2 is definitely there. Relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomials. याद रखिएगा क्यूबिक नहीं है, वैसे भी क्यूबिक कभी बोर्ड में आता भी नहीं था, ठीक है, बट हाँ क्वाड्रेटिक का वो है. ठीक है जी, आप चाहो ना तो साथ साथ एनसीईआरटी खोल सकते हो एंड यू कैन मार्क इट डाउन ऑल्सो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार ये समझना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन लेवल के लिए. ठीक है ना, बार बार कंफ्यूज नहीं होना होगा आपको. एंड दिस वीडियो भी मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूं कि जब भी कहीं आप फंसते हो आप ये वीडियो रिकॉल कर सकते हो, देख सकते हो, ताकि बार बार आपको मुझसे भी ना पूछना पड़े. मैं भी कहीं अटक सकती हूं, तो आई ऑल्सो रेफर टू दिस वीडियो. यानी कि जो हमारा लॉन्ग डिवीजन है वो ये सारा उसी पे बेस्ड था ना, लॉन्ग डिवीजन वो भी नहीं है. ठीक है, हाय कितनी अच्छी मुस्कान आई है ना एंजल के चेहरे पे. एंजल, हु इज हैप्पी? नीव, आर यू हैप्पी अबाउट दिस? बहुत ज्यादा, है ना. यू आर ऑलवेज स्टक इन दिस लॉन्ग डिवीजन, है ना. यार अगर सुन के डांस करने का मन कर रहा है तो कर दो, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होगे, बस मैं देख देख के तुम्हें खुश हो जाऊंगी. सो हु वांट्स टू डांस ऑन कटिंग ऑफ दिस लॉन्ग डिवीजन? नो, नन ऑफ यू. खुश तो इतने हो रहे हो तुम. हाँ, राशि कह रही है यार मुझे यही तो आता था, यही तो मैं नींव से ऊंचा थी, है ना. कृष्ण तो सर पकड़ के बैठ गया, अरे ये तो इतने अच्छे से आता था, ये क्यों कट गया. आई नो, है ना राशि. यू कैन स्पीक यार. लेट अस मेक इट इंटरैक्टिव. मैम ये बहुत इजी था, मतलब इंटरेस्टिंग था, काफी मजा आता था करने में. मजा आता था इसको करने में. मैम इस चैप्टर में और कुछ था वही काट देते, ये क्यों काटना था. अरे ये नहीं देख रहे कितना इजी कर दिया उन्होंने. जस्ट थिंक, 2.1 तो कुछ है ही नहीं और 2.2 कितनी इजी. वैसे ही बहुत इजी थी. पॉलिनोमियल्स वैसे ही बहुत इजी थी भैया, ये तुमको लग रही है. उनसे पूछो जिनको लॉन्ग डिवीजन नहीं आती.
इंक्लूडेड है कि नहीं? नीता, why are you crying? मैम 2.4 अच्छी एक्सरसाइज थी। I know for students who want to really work hard and you will feel यार। और पता है क्या, जब आपको कुछ आता होता है और वो कट जाए ना तो लगता है अरे यार ये तो रख लेते, ये तो मुझे आता था, है ना। लेकिन नीव देखो, अभी नीव मुझे वीडियो में दिख नहीं रहा, उसका नेट स्लो चल रहा है, वो तो कूद रहा होगा सोफे पे चढ़ के। आज पीछे बंद होगा। पीछे स्पेस होती है ना, जूम में हमेशा उसके पीछे स्पेस का वो होता है बैकग्राउंड। आज तो वहां गार्डन, फ्लावर्स, झरने, माउंटेन, पटाखे पता नहीं क्या क्या होंगे। मैम कौन सी एक्सरसाइज से कटा है? 2.4 बेटा थी ना, 2.3। 2.4 और 2.3 से? हाँ ओके मैम। बस हम 2.4 और 2.3 पूरी तो नहीं? हाँ यार, लग तो ऐसा ही रहा है पढ़ के कि ये पूरी कट गई है, क्योंकि सिर्फ इतना लिखा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आ रहा है, दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दैट इज द सेकंड एक्सरसाइज। इसमें तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट वो इतना आसान है कि वो तो मैं आपको कहूंगी सीख के ही चलो, अभी तो याद ही रखना, अभी अपनी मेमोरीज में उसको रखना। बट हाँ ये पक्का है कि 2.3 और 2.4 के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं लिखा हुआ। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कटा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी बकैब, ठीक है, बकैब सिर्फ वही कटा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो आ रहा है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक और नॉट, देन व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, वो है। उसके बाद सॉल्यूशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि जो हमारा b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड था, दैट इज वेरी मच देयर। खुश हो जाओ, वो नहीं कटा है, वो इजी था। यस, इसमें तीसरा एक मेथड था जो मैंने नहीं कराया था, कौन सा था वो? कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। यस, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो नहीं है इस लिस्ट में। आने वाली लिस्ट में जो आ रहे हैं उसमें इस मेथड का नाम नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज नॉट इन द कोर्स। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं दैट मीन्स एक्सरसाइज 4.3, क्योंकि वहां पे सब कुछ हमें सिंप्लीफाई सॉल्व करना होता है और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। दिस टॉपिक इज कॉल्ड एक्चुअली इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो उसके बाद जो एक्सरसाइज 4.4 है ना कि नेचर ऑफ रूट्स, वो आ रहा है भाई, वो आ रहा है। इक्वल रूट्स हैं कि नहीं, वो आ रहा है। इम्पोर्टेंट होगा इसका मतलब, ठीक है। तो वो असाइनमेंट पे अब हमें जोर देना है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। लेट्स कम टू एपी। एपी में जो डिलीटेड पार्ट है उसमें लिखा है कि एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, यानी कि जो हमारी 5.3 एक्सरसाइज है ना उसके अंदर वहां नहीं था कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन, प्राइजेस वाला क्वेश्चन, स्पाइरल, लॉग्स, पोटैटो रेस। हाय रिजुल, अब तुझे झटका लगने वाला है, तूने इतनी मेहनत से वो किया है लेकिन वो कट गया है। हाउ आर यू फीलिंग? हाँ, हाउ आर यू फीलिंग? क्या बात कर रहे हो मैम? कितना चोट लगी? तो मैंने चैप्टर करा था मैम। दिल पे जख्म लगा कि दिल बाग बाग हुआ? मैम ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया, आई नो। 5.4 कटी है। 5.4 के अंदर बेटा सारे क्वेश्चन नहीं कटे, वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे ना, मतलब वो हाउसेस वाला क्वेश्चन है वो कट गया, लैडर वाला क्वेश्चन कट गया, एक उसके नेक्स्ट है ना नजमा वाला है, कौन सा है नेक्स्ट, कौन सा है लास्ट, वो स्टेयर्स वाला, हाँ स्टेयर केस वाला, वो कट गया। यानी कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वाले बेस्ड थे ना ये कट गए। और मैम जो उससे पहले वाले क्वेश्चंस में रियल लाइफ बेस्ड है वो भी कर पाएंगे या फिर सिर्फ यही बताएं?
5.3 के भी कट गए ना, 5.2 के नहीं कटे, Okay. 5.2 पूरी है। All the interesting topics are deleted. All the interested topics are deleted. I know. आपको आते थे ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना। Yes. I know. चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज एक्सरसाइज 7.3, मतलब 7.2 तक पूरा आ रहा है। 7.3, 7.2 के बाद के जो एग्जाम्पल्स हैं और 7.3 वो कट गया है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से कट गया है, मगर 7.4 के फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। एक सेकेंड, मैं भी बुक खोल लेती हूँ, दैट विल हेल्प मी आउट ऑल्सो ना। फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक बुक खोलती हूँ। 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, सेकंड नहीं आएगा, थर्ड आएगा, फर्स्ट और थर्ड। 7.4 का फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और उसके बाद 7.4 का जो 7th क्वेश्चन है वो भी आएगा, मतलब वैसा मैं कराऊंगी जब मैं कराऊंगी ये चैप्टर। बट मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत इजी हुआ करता था। नीरजा ने तो किया हुआ है, बहुत इजी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सेक्शन फॉर्मूला से ज्यादा इजी है, ठीक है। तो हमारा 7.2 तक पूरा आ रहा है। उसके बाद जब एरिया ऑफ ट्राइंगल शुरू होता है वहां से कटना स्टार्ट होता है आगे का चैप्टर। लेकिन 7.4 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 7th ये जरूर प्रैक्टिस करनी है। ये एरिया पे बेस्ड नहीं है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 7th, ठीक है। आगे चलू, लेट्स टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। आगे है ज्योमेट्री, नेक्स्ट यूनिट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, ट्रायंगल्स और सर्कल्स। ट्रायंगल्स की बात करते हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे। ट्रायंगल्स में अभी देखो, आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है तो आपको सुनना ना बोरिंग लगेगा, मगर दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। आप चाहो तो इंडेक्स में मार्क भी कर सकते हो, इंडेक्स खोल लो, दैट इज बेटर। इंडेक्स में आप मार्क कर लो जो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपकी थ्योरम्स कौन कौन सी आ रही हैं, आप वहीं पे चाहे तो साइड में लिख लो ये थ्योरम्स आ रही हैं, किस किस का प्रूफ आपको आएगा। आपको जो प्रूफ आएगा लिखो बीपीटी। बीपीटी हो सकता है आपने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा हो, आप ये लिख लो। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका मतलब समझ आ जाएगा। बीपीटी का प्रूफ आ सकता है और पाइथागोरस का प्रूफ। पहले ना 4 थ्योरम्स होती थी जिनके प्रूफ आते थे लास्ट ईयर, अभी 2 कट गए, अभी 2 ही थ्योरम के प्रूफ आपको आएंगे और 100% आएगा इनमें से एक। सो युवराज पे अटेंशन टू दिस, 2 ही थ्योरम है, इनमें से एक जरूर आती है अक्सर। बीपीटी आप वहां पे लिख लो और एक पाइथागोरस का प्रूफ। इनके प्रूफ आपको लर्न करने हैं, मतलब ये आपको आने चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 6.1 इज देयर, छोटी सी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 इज ऑल्सो देयर, मतलब 6.2 तक भी आ रहा है। उसके बाद 6.3 तक भी आ रहा है। 6.3 तक भी आ रहा है। वीडियो पाइथागोरस का प्रूफ चैप्टर 7 का। नहीं नहीं बेटा, 6 का ही है, पाइथागोरस का प्रूफ चैप्टर 6 में है। आपका ना एक आएगा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल विच इज एक्सरसाइज 6.4, वो नहीं आ रही है। सिक्स 6.4 कट गई है, ठीक है। यानी 6.3 के बाद हम सीधा जो आगे जाएंगे, बीच में एक एग्जाम्पल 9 है वो भी कट गया है, और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम, मतलब बीच का ही जो पोर्शन है 6.3 के बाद पाइथागोरस से पहले वो कट गया है, पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है।
ठीक है, सो बेसिकली 6.4 कटी है, मेनली 6.4 कटी है। 6.5 के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड हैं। मैं आपको, अगर आप ना 6.5 इंडेक्स में वहां लिख लो ये वाले क्वेश्चंस, लिख कर ना उनपे ऐसे हल्का सा क्रॉस लगा देना कि ये नहीं आ रहे हैं। 6.5 का क्वेश्चन नंबर, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जहां पर आपको ये नहीं बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको प्रूव करना है कि राइट एंगल है, वो वाला टॉपिक कटा है। ठीक है, तो कम ही है ऐसे क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है। इट्स ओनली लाइक क्वेश्चन नंबर 5, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 और 1, दैट्स इट। 5 and 1, दैट्स इट। सर्कल्स के अंदर कुछ नहीं कटा है। द होल चैप्टर इज कमिंग, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एंड द होल चैप्टर इज कमिंग, राइट? द होल चैप्टर इज कमिंग। ओके, अच्छा, ज्योमेट्री में एक चैप्टर और है, सॉरी, ट्राइंगल्स है, सर्कल्स, और एक और है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 के अंदर एक टॉपिक है, हम ना 3 टाइप की कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। पहला टॉपिक है एक सीधी लाइन को, लाइन सेगमेंट को पार्ट्स में डिवाइड करना, वो कोर्स में है, यानी एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आगे की उसके बाद आगे की जो एक्सरसाइज है, वेट करो रिजुल, हो सकता है अभी कवर अप हो जाए, ठीक है, वेट करो, हैव पेशेंस। उसके बाद जो आगे की एक्सरसाइज 11.1 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक, वो नहीं आ रहा है, वो कट गया है। एक्सरसाइज 11.1 से सिर्फ क्वेश्चन 1 वाला टॉपिक आ रहा है। आगे के क्वेश्चंस है कि हम एक ट्रायंगल से सिमिलर ट्रायंगल्स बनाते हैं, वो कट गया है, वो कट गया है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 11.2 ये पूरी आ रही है, इसमें नहीं कटा, बस 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बाकी कट गया है। इट्स अ मेजर टॉपिक, हाफ हो गया ये चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री, 2 चैप्टर आते हैं इस यूनिट में, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर 9 विच इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। जो चैप्टर 9 है उसमें कुछ नहीं कटा है। चैप्टर 9 में कुछ नहीं कटा है, पूरा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, ओके। चैप्टर 8 की बात करते हैं। चैप्टर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज ओके, आपका जो कटा है देखो, एक तो वो जो एक्सरसाइज 8.3 थी ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 माइनस थीटा, है ना, वो कट गई है। मैम 8.3 पूरी? हाँ, 8.2 में से एक टॉपिक होता है, मतलब टेबल में से 5 जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। 5 एंगल होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। इसमें से 0 और 90 पे, मतलब जहां 0 और 90 है वो वैल्यूज नहीं आएंगी, मगर 30, 60, 30, 45 और 60 ये वाले क्वेश्चंस पे बेस्ड आ सकता है। मतलब आपको जो एक्सरसाइज 8.2 में से क्वेश्चन आएंगे, वहां पे साइन 0
और साइन 90 यूज नहीं होगा, मतलब 90 और 0 यूज नहीं होगा, बाकी आएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये करना चाहिए, 8.2 का टेबल आपको लर्न करना चाहिए, आगे की क्लासेस में हेल्प करेगा बहुत आपको 11th में। मतलब ऐसा मत सोचना कि आधी टेबल लर्न कर लूं, आपने टेबल लर्न करने का एक प्रोसेस फॉलो किया है, उसको कंटिन्यू रखना, लर्न कर लेना। सीखा ज्ञान कभी बर्बाद नहीं होता, वेस्ट नहीं होता। बेसिकली 8.2 में से क्वेश्चन 8.2 में से समझ लो आ रहा है, मत सोचो कुछ कटा है। 8.3 कट गई है, ये पक्का है। ट्रिग्नोमेट्रिक 8.2 के बाद जो अगला टॉपिक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो कट गया। 8.3 कट गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो कट गया। मेंसुरेशन, इसमें 2 चैप्टर आते हैं बेटा, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। पहले बात करते हैं चैप्टर 12, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देखो इसके अंदर ना सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक है जहां पे सेंट्रल एंगल 120 डिग्री होता है। मतलब अभी आपको ना ये चैप्टर आपने किया ही नहीं है तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको बता देती हूँ। 12.1 है, पूरी है, 12.1 पूरी है। ठीक है, आपका जो कटा है दैट इज एग्जाम्पल 3 कटा है, एग्जाम्पल 3 कट गया है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कट गया है। बस चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.3 तक आ रहा है। 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, बस। आगे टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वो कट गया है, वो नहीं आ रहा है। तो 13.1 इज देयर, 13.2 इज देयर, 13.3 इज देयर। ठीक है, राइट? What about 13.5 in this aspect? या आई जस्ट चेक 13.5 के क्वेश्चंस में जहां भी फ्रस्टम होगा, मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट सेकंड है बेटा, फ्रस्टम का सिर्फ 5वां क्वेश्चन है और छठा 7वां। 13.5 में से फर्स्ट 4 क्वेश्चंस दे आर इन द कोर्स। 5, 6, 7, 13.5 के 5, 6, 7 आउट द कोर्स, वो बाहर चले गए हैं। ठीक है, 13.5 का जहां पे भी फ्रस्टम है, जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे ना, फ्रस्टम होता है कोन का, कोन को बीच में से काट दो तो एक छोटा कोन निकलता है और ऊपर का जो एक और ट्रेपीजियम जैसी शेप निकलती है, दैट इज फ्रस्टम। तो जहां पे भी वो फ्रस्टम है वो कट रहे हैं। ठीक है जी, ओके कृष्णा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जहां तक प्रोबेबिलिटी की बात है, कुछ भी नहीं कटा है, पूरा चैप्टर आ रहा है और अच्छा है, इजी चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स में ओजाइव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, ये कट गया है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये कट गया है और मीन मोड पूरा आ रहा है। मीडियन का एल्जेब्रिक मेथड आ रहा है, जो ग्राफिक मेथड यानी कि जो ओजीव से निकालने वाला जो मेथड है वो कट गया है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक्सरसाइज 14.4 कट गई है। मीन तो निकालना ही है, अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे।
स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं निकालेंगे, जबकि मुझे पर्सनली लगता है कि स्टेप डेविएशन मेथड इज इजियर टू डू, उससे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। बट खैर अब कट गया है तो, और प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं कटा है। एज ऑफ नाउ एज अ स्टूडेंट ये कहना बहुत कट गया नहीं कटा कंफ्यूजिंग सा स्टेट है, मगर मैं सच बताऊं कोर्स थोड़ा इजी हो गया है। फ्रस्टम ऑफ कोन, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कटने से चैप्टर लगभग आप समझ लो 60% हो गया है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज कट गई पूरी, अच्छी लंबी एक्सरसाइज थी। HCF कट गया यूक्लिड लेमा का, तो 60% हो गया फर्स्ट चैप्टर। पॉलिनोमियल्स का 2.3 2.4 कट गया, आधा चैप्टर ही कट गया लगभग, है ना। चैप्टर 3 में से ज्यादा नहीं कटा, लेकिन चैप्टर 4 में से वर्ड प्रॉब्लम्स चली गई, आधा हो गया चैप्टर। मेजर तो वर्ड प्रॉब्लम्स ही थी। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कट गया, आधा हो गया चैप्टर। चैप्टर 5 में से 5.3 के डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चन थे, लाइफ क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक, वो कट गए। थोड़े टफ क्वेश्चंस थे वो, तो इजी हो गई हैं चीजें। मैम चैप्टर 5 एक बार दोबारा बोलना। चैप्टर 5 में से बेटा 5.3 में था ना कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन, प्राइस वाला क्वेश्चन, लॉग्स वाला, पोटैटो रेस वाला, स्पाइरल वाला, वो कट गए हैं। लाइफ सिचुएशंस यस मैम। वो वाले जो लाइफ प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना लाइफ पे बेस्ड, रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड, वो कट गई हैं, जिसमें SN यूज होता है। AN वाली आ रही है लेकिन SN वाली कट गई है। और चैप्टर 6 में से 6.4 कट गई पूरी, 7 में से 7.3 कट गई पूरी, मतलब कटा है कोर्स। 10th क्लास, यू आर लकी। आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से, ओ क्रैक हो रही है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, वीडियो तो बन ही रहा है। आपको ना रिलैक्स हो जाना चाहिए। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी बहुत जल्दी, जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। ऑन कंक्लूडिंग दिस आई वुड से कि देखो कोर्स तो कटा है, अब बाजी आपके हाथ में है। जो टाइम बचा है उसे इतने अच्छे से यूज करो ना कि मजा आ जाए, आप सब बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। CBSE ने स्टूडेंट्स का बहुत साथ दिया है। नाउ इट्स योर टर्न, आपको मेहनत करनी है। ये समय कोर्स कटने की वजह से रिलैक्स होने का, चिल मारने का नहीं है। ये समय है, जो है समय हमारे पास बचा हुआ, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करने का। CBSE ने स्टूडेंट्स के फेवर में बहुत कुछ स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है। सो आई वुड से कि आप अपने अब बाकी का जो भी ईयर बचा है उसको बहुत अच्छे से फोकस करो, बहुत अच्छी तैयारी करो, एंड मे यू ऑल एक्सेल इन योर बोर्ड एग्जाम। And on this note, I conclude this video, and all the best to you, each one of you, whether you are studying from me or not. All the best to each one of you for your board exams. If you have any query about course deduction, my WhatsApp number is there, my email ID is there. You can place your queries in the comment box also. You can ask me any question. मुझे NCERT की फाइल्स पढ़कर जो समझ में आया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको वो एक्सप्लेन करने की। अगर आपका कुछ भी डाउट, कोई भी क्वेरी बच जाता है, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मुझे ईमेल भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई एम वेरी मच देयर, स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट इज वेरी मच देयर टू हेल्प यू गाइज, right? So all the best for your board exams, all the best for your studies, all the best for your preparation, right? All the best.